کہ I believe in transparency. I believe, and this is an article of faith with me, یہ لفظ نہیں تھے، دوسرے لفظ تھے، کہ ایک ایک پائی جو ہے وہ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ان کی خدمت میں نچھاور کی جائے گی، اور میں نے اس کو باقاعدہ اس پورے نظام کا اس کا حصہ رکھا ہے، جو ہمارا جو پلان ہے 4RF، جس میں ریکنسٹرکشن ہے، ریزیلینس ہے، ریہیبلیٹیشن ہے، ریکوری ہے. یہ بہترین مسودہ، بہترین پیپرز بنائے گئے ان تمام عظیم اذہانوں نے، اور وہ سامنے جو بیٹھے ہیں سیکرٹریز، ان کے سٹاف نے پاکستان کے اندر، چاہے کے پی تھا، سندھ تھا، چیف منسٹر سندھ خود بنفس نفیس وہاں موجود تھے، پنجاب کے نمائندے تھے، بلوچستان کے چیف سیکرٹری تھے، اور انہوں نے اپنا وہاں پر کیس خود پیش کیا. حکومت پاکستان نے پورا سپورٹ کیا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کولیشن حکومت ہے. اس کے اوپر عوام نے اعتماد کیا اور دنیا نے اعتماد کیا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری باری ہے کہ ہم نے کس طرح ان فنڈز کو، اور پورا کولیشن حکومت کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ دیر از نو آئی ان ٹیم، اور ہم سب کا جو محنت پچھلے 8-9 مہینوں سے جو مل کے کیے ہیں، اس کا جو پھل ہے وہ ابھی نظر آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب، آپ کا فارن پالیسی کامیاب ہو چکا ہے. آپ نے اس کانفرنس سے ایک تیر سے ایک دو شکار کیے ہیں. ایک تو ہم نے اپنا جو ٹارگٹ تھا اس کو بھی کراس کیا. ہم نے دنیا کو کہا ہے کہ 50% ڈیمیجز کا جو بل ہے وہ پاکستان اٹھائے گا، اور ہمارا ریکویسٹ تھا، آسک تھا کہ 50% دنیا ہمیں مدد کرے، چاہے وہ بائی لیٹرل سپورٹ کے تھرو ہو، انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تھرو ہو، لونز کے تھرو ہو، تاکہ ہم یہ فائنینشیل جو بحران ہے وہ پورا کر سکیں. $16 بلین از نو جوک. جب دنیا کووڈ کی وجہ سے معاشی بحران میں ہے، اوپر سے روس یوکرین کی جنگ نے معاشی بحران بھی پیدا کیا، اور پورا ویسٹرن ممالک کے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہیں، باقی اسسٹنس ہے، وہ کافی حد تک اسی کاز کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کا کامیابی یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنا 8 بلین کا اسٹیٹڈ ٹارگٹ میٹ کیا، آپ نے 9.7 مور دین 9 بلین کو کراس کر کے اپنا جو آسک ہے، ریکویسٹ تھا پوری دنیا سے، اور جیسے آپ نے سمجھایا کہ یہ پوری دنیا نے پاکستان کے ساتھ اس مشکل وقت میں شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ہمارے ساتھ دیا ہے. اکراس جیو پولیٹیکل ڈیوائڈس، ایسٹ لے کے ویسٹ تک، سب نے پاکستان کے ساتھ دیا ہے. اب جیسے آپ نے کہا ہمارے اوپر ہے، ہم نے ان پلیجز کو، ان لوز کو آپریشنلائز کرنا ہے، گراؤنڈ پہ پہنچانا ہے، اور ساتھ ساتھ جو 50% ہم نے پاکستان کے حکومت کی طرف سے میچ کرنا تھا، وہ بھی ریسورسز ہمیں اویلیبل بنانا پڑے گا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک تیر سے 2 شکار کیا ہے، میں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک آپ نے جو اپنے سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کا سلسلہ ہے، جو ایک اتنا مونیومنٹل ٹاسک ہے، اس لحاظ سے تو کامیاب ہوا، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ یہ متھ توڑا کہ پاکستان دنیا میں آئسولیٹڈ ہے. آپ نے پاکستان کے اندر میں جو ڈاکٹرز ہیں اور دنیا بھر میں جو پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کے لیے اچھے نہیں سوچتے ہیں، اچھے نہیں چاہتے ہیں، آپ نے ان کو منہ توڑ جواب دیا. انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جہاں بھی ہو، ویسٹ میں ہو یا ایسٹ میں ہو، انہوں نے آپ کے ساتھ دیا. جو بڑے سپر پاورز ہیں، انہوں نے دونوں آپ کے ایک رائٹ پہ اور لیفٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کے ساتھ دیا ہے. یورپین یونین، جس کو ہم نے بلا وجہ
एग्रवेट किया, उन्होंने भर चढ़ के आपके मदद करने के लिए सामने आया। फ्रांस, जहां आपका हुकूमत आने से पहले सफ़ीर तक नहीं था, उन्होंने 380 मिलियन यूरोस का ऐलान किया है। तो वो मिथ ऑफ पाकिस्तान आइसोलेशन स्टैंड्स कॉन्ट्रडिक्टेड। साथ साथ जो पाकिस्तान की मीशत पे एक गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं, जो पाकिस्तान की मीशत को प्रोपेगेंडा के थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं, उनको आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो लोग आपस में कंस्पायर करते हैं कि हम कैसे पाकिस्तान का IMF डील को सैबोटाज करें, हम कैसे पाकिस्तान को डिफॉल्ट में धकेला जाए, हम कैसे पाकिस्तान की मईशत को खतरा पहुंचाए ताकि हमें सियासी फायदा हो, उन लोगों को जवाब मिला कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मईशत को डिफॉल्ट करते हुए नहीं देखता, बल्कि वो अभी $9 अरब से ज़्यादा आपकी मईशत में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। हैविंग सेड दैट, ऑब्वियसली हमने जो IMF की डील है वो क्लोज करना है। जो ऑफर्स यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल की तरफ से और फ्रांस का सदर की तरफ से आया है, अगर उन ऑफर्स का अवेल किया जा सकता है तो उतना ही बेहतर कि the support that they have offered within IFIs and with debt, अगर वो इंगेज किया जाए उसका भी फ़ायदा हो सके। लेकिन इस प्रोसेस ने एक हमारा सलाह मुतासरीन के लिए जो ज़रूरियात था इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से वो पूरा हुआ। जो फॉल्स परसेप्शन था कि पाकिस्तान दुनिया में आइसोलेटेड है, वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए दफन हो गया। और जो पाकिस्तान की मेशत के बारे में गलत जो एक इम्प्रेशन दिया जा रहा था, वो यूनिटी गवर्नमेंट ने 9 महीने के अंदर वो काम कर दिखाया जो 4 साल में हमारा प्रीडिसेसर नहीं कर सके। हमें अल्लाह ताला की तरफ से मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मदद को ऑन ग्राउंड भी लेकर आएंगे। और हमारा वादा है, हमारा पैगाम है उन लोगों जो मुतासिर हुआ है सैलाब से कि our effort, our mission इसकी जब हमारा ये रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो तो वो लोग जो मुतासिर थे उनका मुआशी हालत उस दिन से बेहतर हो। They should be in a better financial position, better economic position than they were when the rain started, when the flood started. I thank you. बहुत शुक्रिया जी। सर अगर इजाज़त हो तो ये कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए। शहबाज राणा जी, एक्सप्रेस। थैंक यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। एक क्लैरिफिकेशन चाहिए कि इसमें कितना पैसा लोन है और कितनी ग्रांट है 9.7 में। और सेकेंडली आपने फरमाया था कि IMF का मिशन जो है वो 3 दिन में पाकिस्तान आ जाएगा, उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? देखिए, बात यह है कि ये टोटल प्लेजेस हैं। बड़ी सीधी साफ बात है कि जो बायलैटरल जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो तो ज़ाहिर है कि वो तो डोनेशन होंगी। लेट्स से सऊदी अरब अगर $1 अरब दे रहा है फ्रांस जी, फिर IDP की वो इन्वेस्टमेंट होगी, ज़ाहिर है वो। लेकिन यकीनन हमें उम्मीद है कि वो नरम शराइत पे होंगी। तो इस तरह वर्ल्ड बैंक है, इस तरह AIIB है, इस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये तो एक अब हमें अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो इसमें जाए बगैर कि कितने लोन्स हैं, कितने इसमें डोनेशंस हैं, हमें अब पूरी तैयारी और पूरी कुव्वत के साथ एक एक पाई इस्तेमाल करके, जिस तरह फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि अभी भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं खुले आसमान में हैं। और अगर उनके ऊपर आप सोचें तो इंसान लर्ज जाता है कि किस तरह इस सर्दी में, ठंड में वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। तो हमें तो इस वक्त उनको बचाना है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। और IMF की बात जो है, ये मैं गुजारिश करूँगा फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो ज़रा ब्रीफली आपको बताएं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड यूरोपियन यूनियन ने कंबाइन विद मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ वर्कआउट की थी, वो 16.3 बिलियन डॉलर थे, आपके नॉलेज में है। तो हमारा ये है कि जब हम ग्लोबल कम्युनिटी को जाके बात करें तो वज़ीर आज़म का एक फ़ैसला था कि हम कम से कम आधा खुद बर्दाश्त करें और उनको मैसेज दें कि आधा काम अपने पास से करेंगे। तो एक तो ये है कि हमारा जो हदफ था वो 8.15 यानी रफली 8 बिलियन से ऊपर था। जो आपका सवाल है इसमें डोनेशंस कितनी है और वो प्रोजेक्ट लोन्स फाइनेंसिंग कितनी है, तो 8 बिलियन से प्रोजेक्ट लोन फाइनेंसिंग क्रॉस कर गई है ऑलरेडी। सो उसमें आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है। तो इनका अगर हम कंबाइन करेंगे तो इट क्रॉसेज 8 बिलियन। द रेस्ट इज़ अबाउट डोनेशन जो सऊदी डेवलपमेंट बैंक में है। जानबूझ के नहीं ले ला वरना ये 9 हो जाए, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि वो प्रोग्राम लैंडिंग है या प्रोजेक्ट लोन है। उन्होंने 1 बिलियन की अनाउंसमेंट की है। दूसरा जो मैं आपका सवाल था IMF का, हमने बड़ी डिटेल मीटिंग उनसे की है मैंने और मेरी टीम ने, और वो एक हमने उसको थोड़ा सा नैरो किया है कि हमने कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमने उनके एजेंडे में, वी ऑल नो, आपको भी पता है कि पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स हैं, उसमें गैस है, उसमें एनर्जी है, उसमें आपका फिस्कल जो स्पेशल टैक्स लगा था, आपको याद होगा 10%, वो उसमें कुछ स्टेज आ गए थे एक हाई कोर्ट से, और उसकी वजह से वो डिलेड है, वो जजमेंट की तफसील है और वो FBR जाएगा। लेकिन वो दिसंबर के महीने में वो ऑब्वियसली टारगेट थोड़ा 5 महीने का ओवर रन किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके थे। लेकिन दिसंबर के महीने में उसकी वजह से जो दिसंबर में प्रोजेक्टेड था उसका उनके नज़रिए में हमारी टीम ये कहती है कि हम इसको स्टैगर्ड विद द सुप्रीम कोर्ट फाइट वी विल रिकवर इट स्टिल। सो हम अपना साल का जो फिस्कल बजट टारगेट है उसको चेंज नहीं कर रहे, वो हम अचीव करेंगे। लेकिन वो ऑन द सेफ साइड दे थिंक कि जी हमें फिर भी कोई फिस्कल मेजर्स लेने नहीं चाहिए। कुछ हमने जो बजटेड अगर कोई सब्सिडीज हैं, थोड़ा सा किसान पैकेज में है, एक एक्सपोर्टर्स को हमने दिया था, उसके लिए हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन। फिस्कल कोई हम लेंगे, लेकिन किसी कॉमन मैन के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, किसी आम शहरी के ऊपर उसका कोई बोझ नहीं होगा। इट विल बी वेरी टारगेटेड एंड वेरी कैटेगोरिक। लास्टली मैं आपके विद द परमिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर वांट टू अवेल द अपॉर्चुनिटी टू क्लैरिफाई वन थिंग। मैंने जाने से पहले कहा था, जो कि बहुत मिसकंस्ट्रू हुआ, वो मैंने कहा था, किसी ने मुझे सवाल पूछा, मैंने कहा कि पाकिस्तान के रिजर्व जो हैं वो $10 बिलियन है। ना हमेशा, आज नहीं, ये पहले तो एक ही कॉलम होता था, क्योंकि हर सेंट जो पाकिस्तान में आता था वो बैंक अपने पास नहीं रख सकते थे, वो स्टेट बैंक के पास जाता था। ये हमने फरवरी 1999 में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, हमने एक सिस्टम डिवाइस किया था कि सब्सटेंशियल अमाउंट जो आए वो बैंकों के पास ही रहे, और यही वजह है कि आज बैंक्स खुद उसको सारा मैनेज करते हैं। तो वो, लेकिन जब रिजर्व्स की बात, तो 30 जून 1999 का पहला साल था जब आपके रिजर्व एक कॉलम की वजह 3 कॉलम में चले गए, स्टेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स एंड टोटल। तो जब भी पाकिस्तान के रिजर्व दुनिया में कहीं कोर्ट होते हैं, आप सर्वे ले लें, आप कोई डॉक्यूमेंट ले लें, तो वो कोर्ट होते हैं, आप उसके ब्रेक डाउन देते हैं। तो मैंने वो ब्रेक डाउन दी थी। अब अल्लाह इनको हदायत दें, कुछ लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को 24वीं दुनिया की मईशत जो बन चुकी थी 2016 में, जो 2030 में दुनिया की G20 में शामिल हो रहा था जो मुल्क, उसको 47 मईशत पे ला के खड़ा कर दिया पिछले साल, और फिर वो छोड़ के चले गए, और अभी भी उनको कोई अच्छी बात हजम नहीं होती, और उन्होंने उसको ऐसा एक ट्विस्ट दिया। और हम उधर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म की सरबराही में सब, और यहाँ से पीछे से ट्वीट्स हो रही हैं कि जी ये जो कमर्शियल बैंक से हैं वो स्टेट हुकूमत ले रही है। देयर इज़ नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पोजीशन है, आपने देखा कि ये भी था कि जी लाइबिलिटी फलां नहीं पे होगी, फलां नहीं होगी, बॉन्ड नहीं पे होगा, एवरीथिंग इज़ टोटली वर्कड आउट। हर चीज़ की जो प्लानिंग हमारे हाथ में है, और एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, नथिंग टू वरी। मैं सिर्फ क्लैरिफाई ये करना चाहता हूँ कि मैं यही दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने लोगों को हदायत दें। ये चाहते क्या हैं, हर वक्त डिफ़ॉल्ट का एक इन्होंने गर्दान पकड़ी हुई थी, फिर ये गर्दान थी कि बॉन्ड पे नहीं होना, और अब ये आ गए हैं कि जी ये देखें ये करने लगे। प्लीज़ आप अपना नेशनल रोल अदा करें और इसको क्लैरिफाई करें। मैं आज अभी थोड़ी ऐलानात थे। हाँ जी, हाँ, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी को इस वक्त चैलेंजेस हैं, पर्टिकुलरली आप ये देखिए कि पूरे मुल्क में आटे का मसला है, इसके अलावा भी फिनंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं। क्या उस प्रॉब्लम्स को
سالو کرنے میں, ان کو ریزالو کرنے میں یہ جو پلیجز ہیں کوئی ہیلپ فل ہوں گے؟ 1 اور 2 یہ ہے کہ آپ نے تھرڈ پارٹی کا کہا کہ آڈٹ کرائیں گے اس کا, کیا یہ موجودہ جو سسٹم ہے آپ کے پاس ملک میں, کیا اس کے ذریعے سے اس کی ڈسپرسل ہوگی, یا اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بنائیں گے کہ اس پر زیادہ اعتماد ہو؟ اور جن لوگوں کو آپ کے لیے پاکستان کے لیے یہ جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں, یہ جو پلیجز ہوئے ہیں, ان پہ ان کو کچھ تکلیف سی محسوس ہو رہی ہے, ان کے لیے بھی کچھ چند جملے کہیے. شکریہ. پہلی بات تو جو آٹے کی, دیکھیے پہلے بھی ہمارے آنریبل جو فوڈ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ, وہ قوم کو پوری طرح اعتماد میں لے چکے ہیں. میں نے آج ان کو پھر کہا کہ کل, کیونکہ آج موضوع بالکل مختلف ہے, کل دوبارہ وہ قوم سے وہ اپنی تمام جو حقائق کے ساتھ فیکٹس بتائیں گے. مگر ایک بات اس وقت اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ greater than the 2010-2011 floods. After the 2010 and 2011 floods, Pakistan, along with the international community, did build back better, invest in resilient infrastructure. We built bridges in Khyber Pakhtunkhwa that were many, many feet, 15 feet above the highest water of the levels in the last flood. We built flood protection bunds in my home province of Sindh that were far larger, far greater, stronger, with international specifications, to be above double the size of the hill torrents in this specific bunds case that I'm referring to. Unfortunately, we didn't keep pace with the climate change, the changing climate. And when these floods came around, the rains lasted for much longer, for June, July, and up until the end of August. When they stopped, there was a 100-kilometer lake in the middle of the country. 1/3 of the country's landmass underwater, 70% of my home province of Sindh underwater. This is just of a sheer scale that is unimaginable. We have a 4RF reconstruction for a resilient Pakistan plan that international institutions have also endorsed and praised as innovative in the context that it is in the context of our development conference, and a desire for it to be keep pace with the changing climate. But the thing that is out of our hands is that if the next floods are double the size of these, that is on a scale that one can't even imagine. Sanaullah ji, Don. It's best to serve flood affected people. ایک بات. دوسری بات جو آپ نے فرمایا کہ جس طرح سیلاب میں صوبوں کے علاوہ, صوبوں نے بھی اربوں روپے خرچ کیے ہوں گے بالکل, مگر صوبوں کے علاوہ وفاق نے 100 ارب خرچ کیا تھا, اور اس میں سے تقریباً 80 یا 90 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے, یہ 25,000 پر فیملی کی شکل میں تقریباً 2.7 ملین ہاؤس ہولڈز کو ملا, یعنی تقریباً 1.80 کروڑ افراد کو ملا 80-90 ارب روپیہ. تو یہ بڑی شفاف طریقے سے تقسیم ہوئی ہے. اب جو صوبہ مشاورت میں شامل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ہماری پوری کوشش ہوگی ان کو مشاورت میں شامل کریں, اور انشاءاللہ جو ان کا حق ہے وہ ہر صورت ملے گا, چاہے کچھ بھی ہو. اب میں انشاءاللہ جا رہا ہوں یو اے ای, تو آپ دعا کریں کہ یو اے ای ایک برادر ملک ہے اور ہماری